Good morning, students. Good morning. I'm Hemlata Yadav, your teacher, and we were discussing some class 10th chapters. In the continuation of that, we will be now discussing the electricity chapter of class 10th. I hope you are doing good and your studies are going on well. So, in in physics, we will be studying about the reflection first. What is reflection? And this is a physics phenomena in which the light is, that the light is reflected in the same medium. When it comes from one medium, it is transferred back into that same medium. This is reflection. And if the light is it's moving from one medium to another, we say that the light is getting refracted. Both the phenomena, whether it is refraction, whether it is reflection, this is this is we can say is light changing its when light is changing from rarer medium to denser medium, we say that the light is getting refracted. बट व्हेन द लाइट रिमेन इन द सेम मीडियम, मींस एयर में, जब हम देख रहे हैं कि अभी आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि आपके स्क्रीन पे से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, स्क्रीन में लाइट है एंड आप मेरे पास भी लाइट है, तभी मैं आपको वीडियो में दिख रही हूँ. सो दीज आर द थिंग्स. जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, देन ऑल्सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई आवर सेल्व्स एंड we will also identify ourselves in the plane mirror. And there are also some examples by which the light is reflected through other mirrors which are there in the car glasses. So they are also helpful for us. They are also showing that the light is getting refracted. We are able to see the traffic behind us because of the light reflection. So that is the thing. We are able to see the light reflection and refraction. So here is the question. Some questions are there which are present on your screen. I have shared the screen. We will be discussing them one by one. And with this, you will be able to understand the reflection phenomena and refraction phenomena. So some important basic things, first of all, are necessary to understand that mirror formula. The mirror, we talk about in reflection, we talk about the uh, mirrors which are spherical mirrors. Spherical mirrors are the mirrors which are obtained from the um, curved, curved sphere of the surfaces. So curved surfaces are the spherical surfaces, and when we cut those curved surfaces, we get the mirrors. And these mirrors have the reflecting surface curved inward or outward. So focal length is the important thing which is able to understand. फोकल लेंथ क्या होती है किसी भी कर्व्ड सरफेस की? आप जहां पर आपका ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा शार्प इमेज बनाता है, और इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस. सो पोल और द प्रिंसिपल फोकस के बीच में, पोल क्या है? सेंटर पॉइंट है आपके मिरर का, और उससे और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका फोकल लेंथ. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस. इन अ स्फेरिकल मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है
वो दुगना होता है फोकल लेंथ का। और आप यहाँ पर जो इमेज देख रहे हो वो आपकी साइन कन्वेंशन की भी इमेज है कि जो भी लाइट के आपके डिस्टेंसेस लिए जाएंगे ऑब्जेक्ट से मिरर तक, जो लाइट की डायरेक्शन में पड़ेंगे वो तो पॉजिटिव लिए जाएंगे, और जो डिस्टेंसेस आप इसके उल्टे डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में लोगे यानी मिरर से आप ऑब्जेक्ट तक लोगे तो वो डिस्टेंस आपके नेगेटिव होंगे। तो ये दो एरोज आपको यही चीज दिखा रहे हैं। इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में लिए हुए डिस्टेंस आपके पॉजिटिव होते हैं और उसके अपोजिट लिए हुए डिस्टेंसेस आपके नेगेटिव होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले डिस्टेंसेस आपके पॉजिटिव होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले डिस्टेंसेस आपके नेगेटिव होते हैं। एंड यहाँ पर आपको कॉनकेव मिरर दिखा रखा है। एंड अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसके पीछे वाले डिस्टेंसेस क्योंकि लाइट के डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। And mirror formula for spherical mirrors. The mirror for the formula for spherical mirror is the relationship between the object distance and the image distance v and the focal length f. The mirror formula is expressed as 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। Magnification for spherical mirrors. Magnification for spherical mirror is the ratio of the height of the image to the height of the object. Magnification कितना रेशियो बढ़ गया, इमेज कितनी बड़ी बनी किसी ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से, वो रेशियो उसके मैग्निफिकेशन होता है। HI/H0 is the magnification. And the magnification is also related to the object distance and the image distance. It is represented as m is equal to HI/H0 is equal to minus v upon u. The position of the images for various position of the object for a concave mirror are shown below in the table. The table shows the use of the various this table is very important to understand because it can be helpful in identifying the nature of the image, position of the image, and the uses of that mirror. So it is the table of the concave mirror. If the object is kept between the pole and the principal focus, अगर कोई ऑब्जेक्ट आप पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हो तो इमेज जो बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है वर्चुअल और इरेक्ट होती है, मैग्निफाइड बनती है। और यूजेस उसके हैं, शेविंग मिरर्स में यूज होते हैं, डेंटिस्ट मिरर में भी यूज होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं। एट द प्रिंसिपल फोकस अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्रिंसिपल फोकस के पॉइंट पे तो इंफिनिटी पे इमेज बनती है। पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट इंफिनिटी एंड एक्सट्रीमली मैग्निफाइड इमेज हमें मिलती है। टॉर्च में और हेडलाइट्स में इसका यूज आता है। बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट। फ्लड लाइट्स में ये यूज होती है। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पोजीशन ऑफ इमेज रहती है और नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड रहता है, बिगर देन द ऑब्जेक्ट रहता है। यूजेस है फ्लड लाइट्स में। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट रखा है, फोर्थ पोजीशन जो दिखा रखी है आपको, अगर वहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज रियल इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज की बनती है और एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही इमेज सेम पोजीशन पे इमेज बनती है हमको। एंड रिफ्लेक्टिंग मिरर्स यहाँ पर एग्जांपल आते हैं इसके, प्रोजेक्टर लैंप्स यहाँ पर इमेज ऐसी बनने का एग्जांपल आता है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट को रखा है हमने तो इमेज बनेगी बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगी। एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड साइज की, टू कलेक्ट द हीट रेडिएशन इन द सोलर डिवाइसेस। यहाँ पर सोलर डिवाइसेस में, सोलर फर्नेसेस में ये एग्जांपल है जहाँ यूज होती है। एंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो शोन बाय द टेबल। अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर में इंफिनिटी पे रखेंगे तो पोजीशन हमें हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो प्रिंसिपल फोकस पे ही होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनेगा, यूज्ड एज अ रियर व्यू। between the infinity and the pole appears between the principal focus। अगर हम infinity और pole के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दे कॉन्वेक्स मिरर पे
तो जो अपीयर होगी हमारी इमेज, वो अपीयर होगी बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। ये रियर व्यू मिरर की तरह हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज अपीयर टू बी प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, सेम साइड पे बनेगी ऑब्जेक्ट के, वर्चुअल इरेक्ट और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनेगी। स्पेक्टेकल्स फॉर द शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कॉनकेव लेंस का यूज होता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है और प्रिंसिपल फोकस पे बनती है सेम साइड में। तो ये स्पेक्टिकल्स में यूज होता है कॉनकेव लेंस मायोपिया के लिए। बिटवीन इन्फिनिटी एंड द लेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहे कॉनकेव लेंस के लिए, तो इमेज प्रिंसिपल फोकस के और लेंस के बीच अपीयर्स बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द लेंस के बीच में बनती है, एंड वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है। स्पेक्टिकल फॉर द शॉर्ट साइटेडनेस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के इमेज कैसे बनती है? अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो पोजीशन ऑफ इमेज रहती है बिटवीन फोकस एंड द फोकल प्लेन, और रियल और इन्वर्टेड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनती है। टेलीस्कोप्स में ये यूज होती है। ये जब आप इमेज फॉर्मेशंस देखेंगे एनसीईआरटी में, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अभी आप टेबल को आप कॉपी में बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बियॉन्ड 2f अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f एंड 2f बनती है। नेचर इमेज का रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड रहता है। कैमरा में ऐसा यूज करते हैं हम, और आई में यूज करते हैं रीडिंग के वक्त। एट 2f अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनेगी एट 2f, रियल, इन्वर्टेड और इक्वल साइज की बनेगी। फोटोकॉपियर में ये यूज होता है। बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन 2f बनेगी, बियॉन्ड 2f बनेगी इमेज रियल, इन्वर्टेड और बिगर बनेगी। तो ये प्रोजेक्टर माइक्रोस्कोप में यूज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस और 2f के बीच में होता है। एट द प्रिंसिपल फोकस अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, रियल, इन्वर्टेड बनेगी, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनेगी। स्पॉटलाइट्स में ये देखा जाता है। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस है तो ऑन द सेम साइड बनेगी ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी। मैग्नीफाइंग ग्लास और आई लेंसेज में, लॉन्ग साइटेडनेस के आई लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ये एक माइंड मैप है, चाहे तो आप इसको भी कॉपी में अपने बना सकते हैं। और अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर क्या होता है? तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज अचीव्ड बाय द लेंस इज कॉल्ड पावर। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। एंड द पावर इज इक्वल टू 1/f। 1 फोकल लेंथ करने से हमें पावर का फॉर्मूला मिल जाता है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। यहाँ पर हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर का, और अगले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। So firstly, go through the theory of your NCERT as well, and then read it through the video, and then afterwards try to